नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ओझा फिर से आ गया हूँ आपके सामने लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 3 लेके। ये सारे पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अ शॉर्ट नरेटिव पोएम विच इज इंटेंडेड टू बी संग इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाएगा? लिरिक कहा जाएगा। पोएम meant to be sung or intended to be sung is called lyric. Option C is correct. Next question. Each separate sheet of paper in a book consisting of 2 pages is known as. Each separate sheet of paper in a book consisting of 2 pages is known as. क्या कहा जाएगा दोस्तों? Leaf. ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a character of 2 or more letters joined together, a character of 2 or more letters joined together and each in one piece is known as. A character of 2 or more letters joined together and each in one piece is known as. 103 क्या हो जाएगा दोस्तों? लिगाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a humorous poem with 5 lines, the first 2 rhyming with the last. The humorous poem with 5 lines, the first 2 rhyming with the last. क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले भी बता चुका हूँ आपको, बताएं। 104 लिमरिक हो जाएगा। मैंने बताया था, आपको याद दिलाता हूँ कि लाइमर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a literary man, a writer of a literary work is literature. 105 A, 105 सॉरी B, 105 का B हो जाएगा दोस्तों। LITERATEUR. ओके, ध्यान में रखिएगा, B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, ओरिजिनली a song intended to be sung and accompanied on the lyre is said. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 106, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनली a song intended to be sung and accompanied on the lyre is said to be. क्या हो जाएगा 106? फिर से लिरिक आपका आंसर होगा। लिरिक कई बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। लिरिक की डेफिनेशन कई बार पूछ चुका है। लिरिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the great word or universe as distinguished from the little word is called. Question number 107, answer is A, microcosm. Next question 108, magnum opus is, बार बार बता चुका हूँ मैं आपसे, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये डोंट टेक इजी क्वेश्चंस फॉर ग्रांटेड. Question number 108, an author's most important work is called magnum opus. Next question दोस्तों, the ridiculous misuse of a word in speech or writing caused by the replacing the one word for another similar in sound but different in meaning is called. Ridiculous misuse of a word क्या कहा जाता है? Question number 109, 109 इज मैलप्रॉपिज्म. आपको पहले भी मैंने बताया है, डॉगबेरीज्म, मैलप्रॉपिज्म एक ही चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉबरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century. An elaborate semi-dramatic costly form of entertainment introduced from Italy to England during the first half of the 16th century is known as. क्या होगा 1010? 1010 का बताएं आंसर क्या होगा? दिस इज ऑप्शन सी. इट इज मास्क इज एन एलॉबरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th century. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ जनरल ट्रूथ विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अ रूल ऑफ कंडक्ट, a precept is known as. Question number 111, that will be called maxim. Next question,
A record of events drawn from personal knowledge is called. A record of events drawn from personal knowledge is called. 112. What will be the answer? बताएं. मेमोयर. ध्यान में रखिएगा. Next question. The interchange of position between sounds and letters in a word as the S and P in the word claps is called. 113. क्या उत्तर होगा? The answer will be metathesis. Metathesis. The interchange of position between sounds and letters. Okay? Metathesis. Question number 114. The substitution of the name of an attribute of a thing for the name of a thing itself is known as. The substitution of the name of an attribute of a thing for the name of a thing itself is known as. 114. Metonymy. What is metonymy? metonymy वो होती है कि हम किसी भी चीज़ को उस चीज़ से एसोसिएटेड किसी चीज़ से बुलाते हैं, उस चीज़ का नाम ना लेके. जैसे किंग की जगह द क्राउन का यूज करना. ओके. विद्वान की जगह द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड का यूज करना. metonymy को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप अगर डिमांड करेंगे तो metonymy और सिनेक्डकी पर मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स एंड कोड ऐसे प्रोवाइड नहीं करना चाहता जो आपके लिए बर्डनसम हो. क्वेश्चन नंबर 115. A kind of simple farcical drama that was popular among the Greeks and Romans is called. एक तरह का फार्सिकल ड्रामा है, पॉपुलर रहा है ग्रीक्स एंड रोमन्स में, इसे क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड माइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. A professional musical entertainer of the Middle Ages, either attached to some great household or wandering from place to place, is called. A professional musical entertainer है ये, मिडिल एजेस से संबंधित है, अटैच टू सम ग्रेट हाउस होल्ड या किसी बड़े घराने से संबंधित है. ओके. और वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्या कहा जाएगा? मिन्स्ट्रेल. ध्यान में रखिएगा, मिन्स्ट्रेल कहा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. An ode sung by a single actor in Greek tragedy, a poem mourning someone's death is called. An ode sung by a single actor in Greek tragedy, a poem mourning someone's death is called. 117. Monody. Next question. A theme or idea developed on a particular subject in music or literature is known as motif. Next question. What do you mean by neologism? Neologism क्या है? पहले भी आपको बताया हूँ. The coining of new words is called neologism. The coining of new words will be called nom de plume. क्या है? What is nom de plume? बताएं. A pen name, a pen friend, style of writing, controverts. 120. पेन नेम को nom de plume भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पेन नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया क्या है? पहले की होली बड़ी अच्छी होती थी, पहले की दिवाली बहुत अच्छी होती थी, पहले की तो बात ही अलग थी. दिस इज नॉस्टैल्जिया. तो क्या होता है नॉस्टैल्जिया? क्या होगा? द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर डेज ऑफ द पास्ट. द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर द डेज ऑफ द पास्ट. पहले का सब कुछ अच्छा था, आज का सब कुछ खराब. ये जो होता है ना, पहले का गुणगान करने की प्रवृत्ति. अरे पहले की मेरे ज़माने में तो बात ही अलग होती थी, आज का तो सब. तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो नॉस्टैल्जिया होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज. शॉर्ट नॉवेल है, पुअर लिटरेरी क्वालिटी का है, क्या कहा जाएगा? बताएं. मोनोडी कहा जाएगा, नोवा कहा जाएगा, नोवेलेट कहा जाएगा, नोवेला कहा जाएगा. 122.
नोवेलेट कहा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कई तरह से घुमा के नोवेलेट को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम साउंड्स विच सीम टू सजेस्ट मीनिंग इज नोन एज, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द साउंड्स विच सीम्स टू सजेस्ट मीनिंग, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं अगर ऑप्शन में ऑनोमोटोपोइया होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम साउंड्स विच सीम टू सजेस्ट मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट पोएम मेंट टू बी संग, एक शॉर्ट पोएम है जो गाने के लिए लिखी जाती है, क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट पोएम मेंट टू बी संग, 124, अ शॉर्ट पोएम मेंट टू बी संग, बताएं क्या होगा? आप भी कुछ बताएं। ये हो जाएगा ओड। ओके, एड्रेस के फॉर्म में होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, द साइंस or study of being a branch of thought concerned with the nature of existence is known as, a science or study of being a branch of thought concerned with the nature of existence is known as, क्या कहा जाएगा? ontology. your answer is ontology. 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ontology. next question, suggest a word when evil brings about its own downfall, when evil brings about its own downfall, nemesis. आदमी कहता नहीं कि बुराई ही इंसान को उसी को बर्बाद कर देती है, तो ये नेमेसिस। सजेस्ट अ वर्ड व्हेन एविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल, नेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू राइट अ वर्ड करेक्टली द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इज नोन एज, to write a word correctly the system of spelling is known as, question number 127, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन द combining in one expression of two words or phrases of opposite meaning is called, the combining of one expression of two words or phrases of opposite meaning is called, क्या कहा जाएगा? 128, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन मीन, पीएन स्टैंड्स फॉर, ये इसका क्या मतलब होगा? 129, अ ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री, अ ग्रीक, ये क्या है? पीएन, अ ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एन इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसन और स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज, 130, पेजियंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ डिसाइफरिंग एंशियंट राइटिंग इंस्क्रिप्शन बैंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स इज नोन एज, जो एंशियंट राइटिंग इंस्क्रिप्शन बैंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने का, उनका अर्थ निकालने की कोशिश की जाती है, उस कला को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 131, पैलियोग्राफी, क्या कहा जाएगा? पैलियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड सेंटेंस आज वर्ड्स विच रीड्स द सेम बैकवर्ड्स, a word sentence or verse which reads the same backwards, क्या कहा जाएगा? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़ी संभावना है पूछे जाने की, बताएं हमें। ये पैलियंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा। पैलियंड्रोम, पैलियंड्रोम के एग्जाम्पल हमें कमेंट्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a poem in which the author retracts something said in a former poem, question number 133, palinode, answer is palinode. Next question,
अ फॉर्मल स्पीच और राइटिंग प्रेजिंग सम पर्सन थिंग और अचीवमेंट। फॉर्मल प्रेज क्या होती है बताएं, ये पेनिजायरिक हो जाएगी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ डॉक्ट्रिन आर बिलीव दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन। ये इस डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 135, पैंथीज़म। ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल, पैंथीज़म स्पिनोज़ा की थियरी है, वेस्टर्न फिलोसोफर। अगर जिन लोगों ने फिलोसफी पढ़ी होगी थोड़ा बहुत मालूम होगा, नहीं तो यहाँ मालूम कर लें। डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीव दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन, क्वेश्चन नंबर 135, पैंथीज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडॉक्स मीन्स, व्हाट इज पैराडॉक्स? A statement consisting opposite ideas is called paradox. Next question, parlance means, parlance का क्या मतलब होगा बताएं? parlance का मतलब होगा वे ऑफ स्पीकिंग। parlance क्या है? वे ऑफ स्पीकिंग है, parlance वे ऑफ स्पीकिंग। burlesque poem or song is called, कोई burlesque poem song कौन सा कहा जाता है? पैरोडी। बर्लस्क और पैरोडी कई बार एक दूसरे के सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, लेकिन सटल डिफरेंस है। ओके, पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटी इवोकिंग पिटी या सैडनेस इज कॉल्ड एज, क्वेश्चन नंबर 139, पैथोज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पैथोज। ए क्वालिटी इवोकिंग पिटी या सैडनेस इज कॉल्ड पैथोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज अनदर पर्सन थॉट राइटिंग एज वंस ओन, क्वेश्चन नंबर 140, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या होता है? जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कोई और कॉपी करके खुद पढ़ाने लगे। कोड्स पे बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज, लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 141, प्लेटोनिक लव। क्या कहा जाएगा? प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, एन अज्यूम्ड नेम बाय एन ऑथर इज कॉल्ड एज, एन अज्यूम्ड नेम बाय एन ऑथर इज कॉल्ड एज, स्यूडोनिम कहा जाएगा, नाम डिप्लोमे कहा जाएगा, सॉब्रिके कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बोले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ दीज ध्यान रखिएगा। और रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज नॉट रेगुलर इन फॉर्म, रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक है, फॉर्म में रेगुलर नहीं है, क्या होगा? रैप्सोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉन्टिंग रिमार्क समटाइम्स आयरॉनिकल ऑलवेज बिटर और इल नेचर्ड इज कॉल्ड। टॉन्टिंग रिमार्क है, कुछ समय के लिए आयरॉनिकल भी होता है, बिटर है, इल नेचर्ड है। सटायर होगा, आयरनी होगा, सार्केज़म होगा, क्रिटिसिज्म होगा, क्या हो जाएगा? सार्केज़म हो जाएगा। सार्केज़म बहुत तीखा होता है आयरनी की अपेक्षा। होल्डिंग अप ऑफ वॉइस और फूली टू रिडिक्यूल, किसी भी ज़माने की समय की फूली जो मूर्खता है, जो उस समय की बुराइयां हैं, उनको जो रिडिक्यूल किया जाता है, किसके ज़रिए रिडिक्यूल किया जाता है दोस्तों? तो ये सटायर के ज़रिए रिडिक्यूल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सटायर का ओरिजिन याद रखिएगा, कौन कौन से फेमस सटायर हैं ये भी ध्यान रखिएगा, खासकर पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, सिमेंटिक्स किसकी ब्रांच है? 146, फिलोलॉजी की ब्रांच है सिमेंटिक्स। फिलोलॉजी क्या है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉब्रिके मीन्स, सॉब्रिके का क्या मतलब है? 147, सॉब्रिके एक पेन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mistake in the use of language, conventional grammar and idioms, क्वेश्चन नंबर 148, ये क्या हो जाएगा? सोलेसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Speaking one's thought aloud with no one to hear or regardless of the presence of hearers. Question number 149. Soliloquy. Soliloquy और असाइड में आपको मैंने डिफरेंस बताया था. Soliloquy में क्या होगा? नो अदर कैरेक्टर्स विल प्रेजेंट ऑन द स्टेज. वो अपने में ही एक अंदर उसके विचार चलेगा. और ये आर्टिफिशियल डिवाइसेस कही जाती हैं. क्यों आर्टिफिशियल? सॉलिलॉक्वी और असाइड क्यों आर्टिफिशियल डिवाइस कही जाती है? क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है इसको व्यक्त करने के लिए स्टेज पे बुलवाने के अलावा कोई तरीका नहीं, उसे बोलना ही पड़ेगा. हालांकि रियल में वो बोलता नहीं. जब आप कुछ सोचते हो, आपके मन में चलता है, तो क्या आप बोलते हो क्या? तो ये सॉलिलॉक्वी है. असाइड क्या होगा? असाइड पे स्टेज पे लोग रहेंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो सुन नहीं पाएंगे. सॉलिलॉक्वी में कोई नहीं रहेगा, अकेला स्टेज पे रहेगा, कोई श्रोता है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द लास्ट वन. अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स. एक रीजनिंग का फॉर्म है जिसमें दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला जाता है. 150. क्वेश्चन नंबर 150 सिलोजिज्म हो जाएगा. क्या होगा? सिलोजिज्म. सिलोजिज्म. सिलोजिज्म क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था. जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ए शहर में सभी चोर हैं. मैं ए शहर का निवासी हूं, इसलिए मैं भी चोर हूं. तो इस तरह निष्कर्ष निकाला जाता है. या चलिए अपने ही शहर को लेते हैं. प्रयागराज में सभी ईमानदार रहते हैं. मैं प्रयागराज में रहता हूं, इसलिए मैं ईमानदार हूं. ये दो स्टेटमेंट से तीसरा स्टेटमेंट निकाला जा रहा है. ओके दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन पूरे हुए. इसके बाद भी मैं लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. कुछ स्टैंजा फॉर्म्स की आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है. टर्जा राइमा या राइमा रॉयल या ओटावा राइमा या कोई भी शेक्सपियरियन सोनेट्स, जो जिन लोगों का नहीं तैयार है वो लोग मेरे वीडियो से ज़्यादा लाभान्वित होंगे. तो दोस्तों, इसी के साथ ये तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.